Hope you are doing good. So today's topic is transactional analysis. So anybody heard about this? I've heard about Carl Jung, but not this statement. Okay, fine. So great. So though it's a very vast topic and it takes so many sessions to really go deeper in it, maybe 10, 15 sessions, and it's a life-altering topic if we understand, and it's all about ego states and to self-introspect how our ego is working in a different way, and if we can catch that, so how we can shift our life. So that's why I thought that Maven is a platform of so many spiritual people, intellectual people, business in every. So it's impact every area of your life, be it your personal life, be it your professional life, be it your love relationship, be it yourself, be it your relationship with children or elderly people. So, and it really works in psychotherapy also. So we will discover that how it will go, and it's a good topic in itself. So Carl Jung, it's one of the very famous and you can say knowledgeable person in this field, and he says that your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside dreams, who looks inside awakes. So today we are going to look deeper in ourselves. So transactional analysis, it's managing how we can manage our mindset. So first of all, what is transaction? So transaction is how we are reacting to words, or let's say even if we are not reacting with words, how we are communicating with each other with facial expressions or with gestures. So it's a way of understanding communication between two people. It's a system of analyzing and understanding human relationship, and it was first developed by American psychiatrist Eric Berne. And how it is practically useful, because it's a very good positive communication tool. Also, how it helps us, it gives us an insight about the personalities and how the transactions is happening. Transactions mean stimulus and response, how your communication impacting other, and how he's or she's getting the communication and reverting you back. So how the transaction happening between relationships and between people in different domains, be it personal, professional, business, and all. So it helps us in solving personal, family, or organizational problems. Also, it's a non-threatening approach to self-evaluation. It's easy to learn, and it's dealing with conflict management and conflict issues. So why it is really famous in management? Because the language is simple and built in humor, and this is very much appropriate for normal people like us. And we can do self-analysis and self-introspection. Also, we got very much successful result in business and organizations. Also, it's good at workplace and at home in our relationship. So any human being is having three states of ego: parent, adult, and child. So at times we know that we just behave like how our parents did. We even picked up so many statements, the way they get angry, the way they make facial expressions, and they were maybe critical or controlling or authoritative. So at times we pick so much of the thing from our parents, from our environment, from our initial conditioning. And when a person thinks and feels and behaves like his or her parents or environments, so then we will say that we are in parental ego states. And then child,
So when your thinking, feeling, and behavior is like as a child, how a child does or how you were behaving in your childhood. So if that is there, it's just coming as a child state. And adult state is what? When your thoughts, emotions, and feelings and behaviors is a direct result of current happening. So you are not getting influenced by any other thing. Here, what's happening, that what is there right now in the moment, and if there is a problem, there is something you need to address, and you are not coming from your like childlike thing, or maybe you are copying from somewhere. It's just adult. I mean, this is the balanced state, very much mature and balanced state in the present moment. So, and we all shift in all these states. At times we behave like parent, at times we behave like child, at times we behave like adult. And it's happening so spontaneously that we are not able to realize when we are switching to one. And few people practice more of a child, like they always be childish and be kiddish and they behave like that. So they are more into the child state, few people more into the adult states, few people are always like nurturing or maybe critical or maybe authoritative. So I mean, at times we do more of one state and less of another state, but we always shuffle in all these three states. And then there are further breakdown of these ego states. So parent can be critical parent and parent can be nurturing parent also. So critical parent is how, I mean, when you are judgmental and critical, so you give lecture to your kid for small mistake. I mean, कि आप सुना रहे हो अपने बच्चे को, आपने देखा होगा बहुत से पेरेंट एक बार शुरू हो गए किसी चीज पे और वही मिस्टेक की तो बहुत लंबा वैसा हो जाता है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप, बहुत सारे ऑट्स एंड शुड हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. सो ये क्रिटिकल पेरेंट से आता है. Then there is nurturing parent state. Nurturing parent state is consoling and the taking care of others, sympathy. So it's coming from your heart, from how your parents nurtured you and take care of you emotionally. So parent can have two states, either nurturing, either critical parent. And you can behave in the same manner in office also. Let's say, for example, you are going to canteen or cafeteria for some snacks and you are asking your manager that I'm going there, shall I bring something for you? And आपका मैनेजर ऐसे जवाब देता है, हाँ आप तो मेरी मम्मा हो, आपको पता है मुझे क्या चाहिए तो आप मेरे लिए लेते आना. So here how the communication is happening, just you are going to cafeteria for juice or something and you asked your manager and your manager behave like a child here, कि like उसको पता है कि आपको आप उनका ख्याल अच्छे से रख लेते हो. सो ठीक है, जैसे कि वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं कि हाँ तुमको तो पता है, तुम यू आर लाइक माई मदर. इवन इफ ही इज नॉट सेइंग डायरेक्टली यू आर लाइक माई मदर, यू नो कि मेरे को क्या पसंद है, लेते आना. सो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि आप कहाँ पे पेरेंटिंग वाला जो है एक नर्चरेंस केयर से आ रहे हो और कहाँ पे हम किडिशली बिहेव कर रहे हैं, एंड दैट इज ओके. So second is adult state. Adult is very much objective, rational, oriented towards problem solving, de-emphasize emotion. So यहाँ पे overly जो एक होता है ना emotions का flow वो नहीं होता है. यहाँ पे emotion show किए, जितना जरूरी है उतना show किए और बार बार उस पे emphasize नहीं करते हैं. So that's called very much rational, very much to the point, objective approach in the whatever needs to be taken care of. So you are solving that problem in a very adult manner. The child state is two ways. One is adaptive child and another is natural child. So adapted child is modified behavior. Modified behavior to conform adult, like expectation, manipulative, submissive. So ये जो बच्चा है वो अपनी बात मनवाने के लिए या कुछ करने के लिए जो अडेप्ट कर लेता है, चाइल्ड वाला बिहेवियर. हम सब थोड़ा सा कभी कभी मैनिपुलेट करते हैं, कभी कभी हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, कभी हमको कुछ और नहीं आता है तो हम जैसे कि पता है कि पापा मम्मी जब हम बिल्कुल आज्ञाकारी हो जाएंगे तब वो हमारी बात सुनेंगे, तो इसलिए हम अडेप्ट कर लेते हैं वो वाला. सेकेंड इज नेचुरल चाइल्ड. सो नेचुरल चाइल्ड इज व्हाट?
Natural child normally is curious, impulsive, creative, fun-loving, and natural child, how child is always in wonder and try to create, and that kind of child bring new ideas to solve a particular thing. Maybe that thing can be very much, you can say, exhaustive, but a child can bring those creativities like anything, because the child is seeing from a new angle, maybe in business, maybe in office. So all these states are important, but we need to see that how we are behaving in these particular states. So again, the demonstration of parent ego state. So our parent state of mind allows us to be better parent to our child. एंड जैसे हम बच्चों के बारे में बहुत केयरिंग होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमें डिसीजंस लेने को वो करता है कि कैसे एक बच्चे का हमें ख्याल रखना है. इसमें ऑलवेज नेवर शुड, जैसे हम होते हैं पेरेंट्स बच्चों के लिए कि बच्चों को ये करना चाहिए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, उन्हें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे दोस्तों के साथ नहीं. सो दैट्स द वे इट मस्ट बी डन. सो नॉर्मली पेरेंट्स को बहुत क्लियर होता है अपने बच्चों के बारे में, अनलेस एंड अनटिल वो बच्चा एक पर्टिकुलर एज तक नहीं आ जाता है, कि उन्हें बच्चों को क्या ट्रीटमेंट देना है, कितनी फ्रीडम देनी है, कितना उनके साथ जो है लिबर्टी या कैसा बिहेव करना है, उन्हें कितना नर्चर करना है, और कितना उन पे थोड़ा सा एक डिसिप्लिन बना के रखना है. सो दैट्स कमिंग फ्रॉम देयर. अगेन इज अडल्ट ईगो स्टेट. सो अडल्ट स्टेट ऑफ माइंड इज कि जो आप डेटा है वो एवरीडे लाइफ से ले रहे हो, जैसे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे करंट सिनेरियो क्या है, आप थॉरली थिंक करते हैं उसके बारे में, फिर उसके बारे में आप सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन या उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए वो है. सो ये जो साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने बोला कि ये जो पार्ट है आपका, ये अराउंड 10 months ओल्ड से शुरू हो जाता है, और ये मीडिएटर का रोल प्ले करता है बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट. दिस इज द बैलेंस स्टेट, हाउ वी कीप अंडर कंट्रोल आवर इमोशंस, and if we decide to do personal development work to change either the parent or ego states within us, this change always takes place through the adult. So adult जो है rationally देखेगा, parent वाली ego states को भी नहीं लेके आएगा, not too much critical, not too much controlling, or not too much nurturing, always becoming like कि जैसे आप सामने वाले को तो ऐसा प्ले करो कि वो अपना ख्याल ही नहीं रख सकता है, और आप सबके जगत माता बने हुए हैं, या आप जो है पूरे घर में, पूरे ऑफिस में आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और आप दूसरों को समझते हैं कि शायद वो ठीक से नहीं कर पाएंगे तो मेरे को ही संभालना होगा. सो यू बिकेम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल. सो दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम पेरेंट. And the child is always like, child is not taking responsibility, child is just doing fun and those kind of things. So adult is like, यदि आपको दोनों states को balance करना है, यदि कोई भी state आप में ज़्यादा है, तो आप इसको वहाँ से balance out कर सकते हैं. Then child state क्या है? Child mind state compromise our internal reactions, emotions and feelings to the events going around us in environment. So इसमें क्या है? इंट्यूशन है, क्रिएटिविटी है, इंजॉयमेंट है, स्पॉन्टेनियस ड्राइव है. ऑल्सो एक तरीके का नया जो इन्वेंशन है वो आप इस चाइल्ड लाइक स्टेट से ही, क्योंकि पहले से बायस नहीं है, योर आइडिया इज फ्लोइंग न्यू, समथिंग न्यू यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. ऑल्सो when we become deeply emotional, whether emotions be anything, maybe the joyful emotion or the emotion of sadness or anger or any other feeling, तो वो इतना ज्यादा यदि हम इमोशनली ओवरवेल्म्ड है कि हमारा रैशनल ब्रेन नहीं काम कर रहा है, और हम उन इमोशन से ही ड्राइव होके अपने सारे डिसीजन ले रहे हैं, और इमोशन से डोमिनेट कर रहे हैं हमारे को. सो इन दैट स्टेट वी नीड टू सी दैट वी आर चाइल्ड. सो फार आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं या एनीथिंग इज नॉट क्लियर, सो वी कैन टेक दोज क्वेश्चंस एंड देन वी कैन कंटिन्यू. Good morning, Pooja. I've just joined, so I'm so sorry. I missed the initial introduction. It's okay. It's okay. So we are talking about transactional analysis, and majorly there are 3 ego states in which every human being is
reacting or responding to the world and the communication of others, how we are responding to each other. So two person, whenever they are in contact, either they are, it's like a stimulus response thing. And whenever we came in contact with other person, either we with facial gestures, with hand movements, or any kind of facial expression like smile, or maybe we are saying some words, hello, how are you? This is for example, we make example दे रही हूँ कि आपकी वाइफ बहुत गुस्सा है किसी चीज पे, आपने जस्ट इतना पूछा आज खाने में क्या बना है, राइट? और आपकी वाइफ ने जवाब दिया कि मैं मर गई हूँ, मुझसे मत पूछो क्या बना है, समथिंग लाइक दैट. और मे भी कुछ भी ऐसा वर्ड उन्होंने बोला कि बहुत गुस्से में ऐसा वर्ड बोला. तो यहाँ पे यदि आप ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे, कम्युनिकेशन को देखेंगे, तो क्या है कि आपने सिंपल सी बात पूछी कि आज खाने में क्या बना है. एंड यदि आप दोनों लोग अडल्ट ईगो स्टेट में होते तो इसका सिंपल सा रिस्पॉन्स होता कि आज खाने में राजमा चावल बने हैं, आज खाने में जो भी है मशरूम बना है, वट एवर इट इज, राइट? बट ये कहाँ से आ रहा है? एक बच्चे की तरह आपकी वाइफ हो सकता है इमोशनल स्टेट में थी या किसी चीज से वो फ्रस्ट्रेटेड थी, उनका जवाब आ रहा है कि कीमा बनाए और मेरा कीमा बन गया है, या मतलब समथिंग लाइक दैट. सो इट्स कमिंग फ्रॉम चाइल्ड ईगो स्टेट कि वो बहुत ही रिएक्शन मोड में ऐसा आ रहा है वहां से. सो these all kind of transactions means communication happening between two people. एंड यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन एनालिसिस में एक वर्ड यूज होता है स्ट्रोक. स्ट्रोक मीन्स कि आप कुछ भी, जो भी आप काम करते हैं अपनी जिंदगी में, आपको कुछ ना कुछ उससे चाहिए होता है. और नहीं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एटलीस्ट जो भी हमने किया उसका हमें अप्रिशिएशन मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले, या जो है और कुछ नहीं तो मतलब कुछ काम हम इसलिए करते हैं, ऑफिस के काम करते हैं, ऑब्वियसली कुछ मॉनेटरी हमें उससे चाहिए होता है, या हमने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, बहुत दिन रात मेहनत की, तो हमें उसके लिए रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स भी चाहिए होते हैं. या फिर जैसा एक इंस्पायर करने के लिए होता है कि वाओ यू डन इट रियली गुड, वेल डन, कीप इट अप, समथिंग लाइक दैट. सो ये भी एक स्ट्रोक है. तो अब ये लोगों को पता नहीं होता है कि हर इंसान जो भी काम कर रहा है, यदि आप उसको पॉजिटिव स्ट्रोक देंगे या पॉजिटिव फीडबैक देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छे से ये करेगा. तो इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं कि नॉर्मल टिपिकल बिहेवियर क्या रहते हैं तीनों स्टेट्स में. सो जब आप पेरेंट ईगो स्टेट में होते हैं, ये सभी का है कि सभी लोग तीनों स्टेट्स में शफल करते हैं. तो जब आप पेरेंटल ईगो स्टेट में होते हैं तो आप क्या करते हैं? एडवाइस कर रहे होते हैं, आप क्रिटिसाइज करते हैं, या आप ऑर्डर कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, जैसे कि आप ये करो और ये नहीं करो. लाइक अ बॉस ऑर्डर करते हैं आपकी टीम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइक अ सीईओ इन कंपनी. आप बताते हैं लोगों को, आप कई बार फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे होते हैं, मॉरलिटी में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो उस तरह की चीजें आप कर रहे होते हैं. स्कोल्ड करते हैं, नर्चर करते हैं, केयर भी करते हैं, लव भी करते हैं. सो ऑल कमिंग फ्रॉम parent ego state. When you are adult, so you are doing the fact finding. Actual fact क्या है? What is the root cause analysis you do? Then आप क्वेश्चन करते हैं. यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप इमोशंस में नहीं जाएंगे, आप क्रिटिकलिटी में नहीं जाएंगे, जजमेंट में नहीं जाएंगे. You ask more question to understand कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, maybe I am missing some point, so I can ask some more question. You try to analyze it thoroughly. You try to solve the problem in hand. You try to help. You try to cooperate, and you plan things. You coordinate with your team members or coordinate with family members, so that you get the result and you are able to solve the problem, taking everybody in consideration. And you can schedule. You can think. So all this coming from your balanced ego state, which is the adult state. And third is child. So child कैसे behave करता है? Either they are laughing, they are crying, they are sulking, and then they can be frightened. They play, they enjoy, they dance, they can be curious, they can obey, they can be dependent, and they can be very much innovative also. So these are all coming under the child ego state. Now this is the egogram.
egogram is a relationship diagram which is depicting the amount of energy a normal person uses extremely or actively as one relates to others. So in middle, the balanced state, which is adult, and here is coming the nurturing parent and critical parent. And in the right hand side, you can see the adaptive child and the natural child. So normally our all the energy, how we are spending in all these states, and the most balanced state is coming as an adult state. So we will understand with few examples. Okay, so there is a video we can see. Sorry, I don't know what's the problem. It's not allowing me to play. Anyways, so the video is not playing. We are moving ahead. We can see from another examples. So here are few examples how the types of interpersonal transactions means interpersonal communication happening. Either parent to child and child to parent, the communication is happening. So it can be complementary. And now it can be cross transaction where parent and child, it's like that. Few communication can happen where there is an ulterior motive. Ulterior motive, like you are saying something else, but inside you are something else. So normally people do these kind of transaction also. For example, let's say you are not able to complete a project, or maybe something was very crucial and you are not able to do it due to some emergency at your home, and you are not able to inform because it was out of the blue, some situation came, and next day during that meeting or presentation, you are saying that, boss, I'm not able to do it due to this and this, and your boss is saying कि आपने inform क्यों नहीं किया? Why you haven't informed me earlier? You know that how much important it was. So आपका boss जो है वो explanation में नहीं जा रहे हैं. आपके boss कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपके बस का नहीं है, ये काम रहने ही दो. आपकी जगह मैं किसी दूसरे को ये पूरा प्रोजेक्ट दे देता हूँ. आई मीन कि बॉस का अल्टीरियर मोटिव था कि वो चाहता ही नहीं था कि आप वो प्रोजेक्ट करें, और एक सिचुएशन ऐसी आ गई है, तो रादर देन हैंडलिंग इट, रादर देन वो उन्होंने आपको रिप्लेस ही कर दिया उस प्रोजेक्ट से. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम कि जरा सा मौका मिला और वहां पे एक अल्टीरियर मोटिव था कि आपसे कोई गलती हुई नहीं कि आपको रिप्लेस कर दिया गया. सो ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब इनसाइड एंड आउटसाइड आपका वन नहीं होता है. यू आर समथिंग एल्स इनसाइड एंड यू आर सेइंग समथिंग एल्स. It can happen in personal also, and it can happen in professional also. So this is the ulterior kind of transaction. Then the adult to adult is expected kind of communication or transaction happening. And then this is a kind of transaction जहाँ पे आप adult to adult behave करना चाह रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला इंसान है वो आपको critical parent की तरह या child की तरह response कर रहा है. And then there are different kind of communication, verbal and non-verbal, which is having some hidden meaning also. So all kind of transaction happening. And इसमें एक पोजीशन रहती है, साइकोलॉजिकल पोजीशन रहती है. तो इन ट्रांजेक्शनल एनालिसिस हम जो लाइफ है पूरी उसको एक स्क्रिप्ट की तरह से लेते हैं कि आपकी लाइफ जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट होती है वैसे चल रही है, और इसमें लाइफ के डिफरेंट टाइम पे आपकी सेल्फ इमेज या सेल्फ आइडेंटिटी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं. कई बहुत बार जो होता है आप यू आर वेरी हाईली कॉन्फिडेंट एंड योर सेल्फ इमेज इज वेरी गुड. You are confident in taking decision, you are saying what you mean, and at times your confidence level is very low due to any personal or health issues or any kind of state you are in. So you behave differently. So basic psychological life positions कैसे होती हैं आपकी self image के according. एक होता है कि you are fine and सामने वाला भी एकदम normal है. Both are normal, both are fine. And then you say that I am also okay and you are okay. So this is the win-win situation where both interests are taken care of, both parties' interests are taken care of, be it your spouse or be it your boss or colleagues or in anywhere. So this is a win-win situation. This is really good situation where you are behaving like
very good self-image, very confidently, and you are communicating clearly, and you are direct in your communication, and you are trying to take care of things in a very good way. So the winner, the health, the optimistic, usually adult to adult ego state, ideal life position on and off the job. So this is the ideal life position जब आप इस psychological या egoic state में होते हो, जब आपकी self image अच्छी होती है. Second is I'm not okay, you are not. I'm okay, you are not okay. So एक इंसान समझता है कि मैं ही सही हूँ, right? I am always right, and जो बाकी लोग हैं या जो सामने वाला है वो उसमें कुछ गलती है, वो ठीक नहीं है. So you are always critical and judgmental towards others. So how usually this ego state is like critical parent. जब आपकी ये critical parent वाली state activated हो जाती है, so इसमें आप बहुत critical हो जाते हैं. यदि दूसरा कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है, दूसरा और या फिर यहाँ से भी आ रहा होता है. ये state कहाँ से आती है कि कहीं ना कहीं आप hurt हैं, कहीं ना कहीं एक बच्चे को कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, उसकी चीजों के लिए उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसने बहुत हार्ड वर्क किया मम्मी पापा के सामने प्रूव करने के लिए खुद को कि आई एम अ गुड चाइल्ड. और मतलब बच्चों को होता है कि जैसे मैं ये कर लूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा या मुझे रिकॉग्निशन मिलेगी या मेरे को भी अच्छा बच्चा समझा जाएगा. तो आप बड़े हो गए हैं 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, लेकिन अभी भी आपका वो हर्ट जो है वो गया नहीं है, अभी भी आप वहां से ऑपरेट कर रहे हैं. तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि डिस्ट्रस्ट आ जाता है, एंगर आ जाता है, और कई बार लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ किया होता है और वो अपने आप को समझने लगते हैं कि दे आर वेरी मच सुपीरियर, एंड वो समझते हैं कि नाउ आई एम डूइंग ओके एंड आप ओके नहीं हो. तो हमेशा क्रिटिकल वाला मोड रहता है. थर्ड इज द स्टेट जहां पे आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके. सो लाइक अ विक्टिम मोड. आई एम नॉट ओके, आई एम हेल्पलेस, and I'm dealing with this situation, I'm dealing with this health issue, or maybe I'm in this mental emotional state. So भाई मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, right? But आप ठीक हो. So now you are behaving like a child, and you in your relationship you want other people to understand you, you want other people to take care of you emotionally, nurture you, and this child to adult ego state is activated. अब यहाँ पे क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन में हैं तो हो सकता है कि वहां पे कुछ आपके साथ पर्सनल, प्रोफेशनल, या आपने बहुत मेहनत की, कोई आपका ड्रीम था वो नहीं पूरा हुआ, तो वो ईगो स्टेट आपकी एक्टिवेट हो गई है. इसमें आपको किसी वजह से बार बार सेटबैक्स हुए हैं तो फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी आ रहा है, या फिर आप कोई हीरो वर्शिप करते हैं कि मतलब किसी को आप बहुत ही ऐसा मान रहे हैं, दूसरों को हमेशा हीरो मान रहे हैं और अपने आप को आप थोड़ा सा इंफीरियर मान रहे हैं. एंड आप अपने रिलेशनशिप में हमेशा पेरेंटली फिगर को देख रहे हैं कि कोई आपको गले लगा ले, कोई आपको संभाल सके, कोई ऐसा इंसान हो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाए, है ना. और इसमें क्या करते हैं, क्योंकि आप इतने ज्यादा वनरेबल होते हैं, आप दूसरे इंसान को ही सारा कुछ डोमिनेट करने देते हैं कि उसने जो कह दिया मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, आई एम नॉट इन दैट स्टेट, सो आई टोटली सरेंडर, एंड जैसा वो सामने वाला चलाएगा आप वैसे ही चलेंगे. So this is the state, and at times everybody goes in these kind of states. And fourth is I'm not okay, you are not okay. Like कि आप खुद भी ठीक नहीं है और सामने वाले भी ठीक नहीं है. तो ये बहुत ही, जब आपका सेल्फ इमेज लो होती है, आपका किसी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है, तो आप नेगेटिवली भी वर्ल्ड को देखने लगते हैं, एंड यू आर कमिंग फ्रॉम दोज फीलिंग ऑफ हर्ट एंड दोज काइंड ऑफ इमोशंस. एंड जब लोग इस स्टेट में चले जाते हैं तो उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है खुद पे, और ट्रस्ट दूसरों पे खत्म हो जाता है. और कई बार लाइफ में जो अच्छी चीजें होती हैं वो नहीं देख पाते हैं उस स्टेट में लोग. बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही होती हैं, लेकिन जो 4, 5 या 10 टॉपिक्स ऐसे हुए होते हैं या इंसिडेंट्स ऐसे हुए होते हैं, वहीं फोकस जाता है कि आई कैन ट्रस्ट एनीवन. सो लैक ट्रस्ट इन सेल्फ, इन अदर्स, और फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और depression, other kind of anxiety, and those kind of feelings come from this state. But ये कोई भी state permanent नहीं है. हम इन states में जाते हैं और इस state से बाहर आ सकते हैं. And we keep switching on these states in different, क्योंकि life script तो बहुत बड़ी है आपकी. Life is like a movie. यदि आप उसे ले तो उसमें हर तरह का ड्रामा, हर तरह का अप एंड डाउन आएगा, और कभी हम किसी state में होते हैं, कभी किसी state में होते हैं. And fifth state is I am okay, but I am not sure about you.
कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप दूसरे को हमेशा वो कर रहे हैं कि पता नहीं भाई तुम्हारा मुझे मालूम नहीं है कि तुम किस हालत में हो, क्या हो। सो मैं अपने बारे में तो ठीक हूँ, बट मैं दूसरे को डिस्काउंट, मतलब कि उसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा। सो स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर इंसान को कुछ ना कुछ स्ट्रोक चाहिए होते हैं, रीएश्योरेंस चाहिए होता है किसी न किसी से। जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आप कैसे टेस्ट करते हैं कि आपके आसपास वाले लोग, आपके बॉस जो हैं या आपके जो मम्मी पापा हैं, घर में आपका पार्टनर है, आपको एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लाए और आपकी वाइफ आपसे बोलती है वाओ क्या चॉइस है आपकी, तो आपको एक पॉजिटिव स्ट्रोक मिला। और आप एक साड़ी कहीं गए थे घूमने ले आए, तो ये दूसरा आपको स्ट्रोक मिलता है कि आपको तो समझ ही नहीं है, आपकी कोई चॉइस ही नहीं है, तो आपको कैसा स्ट्रोक मिला। सो हो सकता है नेक्स्ट टाइम से आपका मन भी हो तो आप बोलेंगे कि भैया तुम अपने आप ही खरीद लो, एंड मैं अपना इतना दिमाग खर्च करके 10 जगह से जाके एक पसंद की चीज लाऊंगा और इसको कुछ पसंद तो आता नहीं है, लेट। तो वो नेगेटिव स्ट्रोक आपको मिला, राइट। सो इस तरह के जो स्ट्रोक होते हैं, वो स्ट्रोक भी आपको कैसे मिले। एक बच्चा है, उसको हमेशा कितनी भी मेहनत की उसने, कितना भी एफर्ट डाला रिश्तों के लिए, फैमिली के लिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ में, बट उन्हें हमेशा नेगेटिव स्ट्रोक मिले तो उनका सेल्फ इमेज डाउन चला जाता है। वही कोई इंसान यदि थोड़ा सा नेगेटिव या लो सिचुएशन में भी है, सेल्फ इमेज थोड़ी लो है, लेकिन हमें पॉजिटिव स्ट्रोक जब हम उसे देते हैं तो वो धीरे धीरे, जैसे अब मैं बोलना शुरू कर दूं कि ऑसम मीना जी एंड फैबुलस उदय भान जी, राइट, एंड फैंटास्टिक जयति रॉय, राइट, सो एंड प्रिंसेस शबाना खान, राइट, so how you are feeling? So that's great, everybody like it. बट यदि मैं ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दूं, या उदय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? You want to say something? Yeah, please unmute. Okay, you acknowledged it. Yeah, कुछ Yes. कह रहे हैं? नहीं, please continue. Okay, fine. So I mean to say कि आपका देखिए एक वर्ड भी कितना पावरफुल है कि आप किसी को कितना एनर्जाइज कर सकते हैं। आपके ऑफिस में आपने एंटर किया और आपने सब लोगों को वार्म वेलकम किया और आपने कुछ ऐसे वर्ड्स किए कि लेट्स से यू आर एंटरिंग इन ऑफिस, यू आर एंटरिंग इन मेवन ऑफिस एंड यू से वाओ व्हाट अ मिराकुलस प्लेस दिस इज। यहाँ पे तो चीजें मैनिफेस्ट ही होती हैं, जो आता है वो उसकी लाइफ जो है 100 टाइम ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो कैसा एक वो होगा। और दूसरा कोई इंसान आए बोले भाई मैंने तो मैनिफेस्टेशन पता नहीं कितने टाइम से, मेवन से मैं मैनिफेस्टेशन ही सीख रहा हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। सो आई मीन यू कैन क्रिएट एनीथिंग विद योर वर्ड, हो सकता है हुआ भी हो, लेकिन उन्होंने जो है उस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया। सो यहाँ पे क्या है कि एक वर्ड, एक सेंटेंस आपका पूरा एनर्जी शिफ्ट कर देता है, व्हाट आई मीन टू से। सो पॉजिटिव स्ट्रोक क्या है कि प्रेज है, कॉम्प्लीमेंट्स है, रिकॉग्निशन है, अफेक्शन है, रिवॉर्ड्स है, सिंपैथी है, कनेक्ट है, राइट। आप कोई ना कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो आपने कुछ काम अच्छा किया तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी आता है, लेकिन एक जो आपको रिकॉग्निशन मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है तो उससे आप और ज्यादा उसके लिए काम करते हैं अच्छे से। नेगेटिव में यही होता है कि आप लो फील करा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं या स्कोल्ड कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। एंड कंडीशनल स्ट्रोक कैसे होते हैं? कंडीशनल क्या होते हैं? अल्टीरियर मोटिव वाले स्ट्रोक होते हैं कि ये स्ट्रोक आपको, जो आप इंसान है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आइडेंटिटी है, जो आप होलसम है, उस चीज के लिए आपको नहीं दिया जा रहा है। आपने जो काम किया, जैसे कि परफॉर्मेंस कुछ आपने की तो आपको वो, जैसे कि ऑफिस में क्या होता है, आपने कुछ परफॉर्मेंस दी तो आपको पॉजिटिव स्ट्रोक मिला, आपको हाइक मिला, आपको कुछ रिवॉर्ड मिला या आपको प्रमोशन मिली। और बाकी जो चीजें होती हैं वो कुछ ना कुछ आपको एकोमोडेशन एंड कन्फर्मिटी ओरिएंटेड स्ट्रोक्स को। तो कुछ स्ट्रोक्स जो हैं ये कंडीशनल हैं कि कुछ आप करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अब नॉर्मली हम ध्यान नहीं रखते हैं बात करते हुए कि हम बात करते करते कैसा कर जाते हैं। लाइक अभी मेवन जो है वो स्पिरिचुअल फेस्ट करने वाला है। सो कितने ऐसे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे बट स्पिरिचुअल फेस्ट बहुत कम लोग करते हैं। सो आई कैन एक्नॉलेज मेवन की उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सो यू ऑलवेज इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन देयर स्पिरिचुअल फेस्ट और लोगों को बहुत बेनिफिट होता है जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं वहां पे।
So and Shabana जो है वो सब तरह के लोगों को, be it Hindu, Muslim, Jains, and all kind of people from all dimensions and world, and coming up with their techniques and healing and whatever it is, right? So if I say like this, if I start saying plus point of these, right? तो क्या होगा कि ये बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रोक हो गए उसके बारे में. So it's in our hand that how our communication is creating the thing and which ego state we are in, and हम सामने वाले की ego state को कैसे वो कर रहे हैं. So guys, this is the exercise time. Can you please come on camera? I request you all to please come on camera so that we can see. Thanks Neelam ji, thanks Uday ji. So yeah, so अभी तक जो हमने सीखा, हम थोड़ा सा एक क्विज करते हैं कि कितना समझ में आया, right? So now we both are employee, and one person is saying to another that proposal was hopeless, and she's saying shut up, do it yourself next time. अब आप देख के बताइए कि इसमें कौन सा ईगो स्टेट प्ले कर रहा है. Adult. Adult. No. Someone else. Yeah. Ego. हाँ, आप किस स्टेट से आ रहे हैं? जैसे आप एक ऑफिस में हैं, कोई प्रपोजल आपने दिया था और आप आके बोल रहे हो कि क्या प्रपोजल था? दैट प्रपोजल वाज होपलेस. सो और जो सामने वाली एम्प्लॉई है वो कह रही है कि शट अप, इतना ही होपलेस लग रहा है तो तुम अपने आप ही कर लेना नेक्स्ट टाइम से. तो क्या समझ में आ रहा है? कि ये बहुत ही क्रिटिकल पेरेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना? बहुत क्रिटिसाइज किया इन्होंने. प्रपोजल था, जो भी है, मेहनत की आपने, ना तो एक्नॉलेज किया उस एम्प्लॉय की मेहनत को, ना किसी चीज को कंसीडर किया आपने. स्टेट आके बहुत ही क्रिटिकल वे में बोल दिया कि होपलेस था, राइट? सो क्या इट वाज रियली होपलेस. द वे यू कम्युनिकेटेड, द फेशियल जेस्चर्स यू कैन सी, है ना? और ये भी बिल्कुल बच्चों की तरह एकदम, शी इज नॉट बिहेविंग लाइक एन एडल्ट. किसी ने आके बोल दिया, ही द बॉस और मे बी द कोवर्कर इज वेरी क्रिटिकल, बट शी इज सेइंग कि आपको इतना ही होपलेस लगा ना तो अपने आप ही कर लेना नेक्स्ट टाइम से. सो यदि आप नॉर्मल अडल्ट स्टेट में होंगे ईगो की, तो वैसा नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे. आप बोलेंगे कि ओके, मे बी की कुछ कमी रह गई होगी, कैन यू प्लीज टेल मी कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड क्या करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, सो नेक्स्ट टाइम से हम उसका टेक केयर करेंगे. यदि आप अडल्ट ईगो में होंगे तो आप वहां से आएंगे, सोल्यूशन बेस्ड उसमें आएंगे, ना कि आप ऐसा उल्टा जवाब दे देंगे कि, है ना? सो रिएक्शन देखिए यहाँ पे. नेक्स्ट इज, who will tell me how will I get this done today? शबाना जी बताएंगी, अमीना जी. I think it's more of fear. So maybe child. Yeah. Yes. शबाना जी को 5 points मिलते हैं इसके लिए. Yay, thank you. Yeah, she is accurate because the expression you can see on her face, like she is behaving like a child. काम इतना है, वो बोल रही है यार इसको कैसे करेंगे, how will I get this done today, ना कि आज की डेट में कैसे होगा. So she is behaving like a child, and she is coming from that kind of ego state. Now next one is, there is a problem with the plans. One engineer is talking to another engineer, and another engineer is saying what's the problem. So Neelam ji will tell. Or anyone else if they want to. I'm Both are okay, you are mature. okay. Sorry? Both Neelam are ji, Say I'm mature. okay, you are okay.
Oh, I'm okay, you are okay, great. And both are mature. So both are maturely handling. So there is a problem with the plans, and another person is also saying, what's the problem? So both are coming from adult, like solution-oriented approach. Yes. Both are behaving maturely in the current situation, whatever the problem is, they are trying to solve it. Yes. Now the next one is, listen here. Do you know who I am? Pagal. Egoistic. सर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में कोई पागल ईगो स्टेट नहीं थी. This So, has to be a child. yeah, this is really a child and is coming from a very childish behavior. बता रहे हैं अपने आप को पावर में कि आपको पता नहीं है आप किससे बात कर रहे हो, who I am, right? And it can be also very much critical parent also can come in this, कि वो अपनी पावर और वो शो कर रहा है कि आपको पता नहीं है आप किससे बात कर रहे हो. So it depends on the situation. It can be either critical parent or a child. Yeah. So great. Now the next one is, you are a jerk and you are a jerk. कॉलर ही पकड़ लिए दोनों ने एक दूसरे की. So what's the ego state is playing here? Again, very childlike, I feel. Yes. So both are behaving very kiddish, rather having conversation and try to solve, try to see the reaction mode में आ गए हैं, and they are fighting like anything. So very childish reaction to things. ऐसा घर में भी होता है, बच्चे भी खेलते हैं तो फाइट कर लेते हैं, कभी कभी बड़े लोग भी ऐसा कर लेते हैं. बड़े लोग यदि कॉलर नहीं पकड़ पाते तो वर्बली ऐसा कर लेते हैं. So all those kind of things are really childish. So we are operating from child ego state. Now, the next one. I can't have it done Thursday, but I can have it done Friday lunchtime. Very positive. Or positive. What else? Which ego state she is in? Child, adult, or parent? Adult. Adult. Yeah, very nice. You are very quick learner, good learner. You learned really quickly. So clapping for you guys. Yeah, so she's, though the work is huge work, but she's clearly saying कि जो है अभी नहीं हो पाएगा, है ना, थर्सडे तक नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं फ्राइडे लंच टाइम तक इसको किया जा सकता है. शी इज कैलकुलेटिंग क्या उसके पास टास्क इन हैंड है, कितनी बैंडविड्थ है, क्या डिलीवर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. एंड शी इज नॉट लाइक कि बॉस ने बोल दिया तो शी इज सेइंग यस 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 टू प्लीज द बॉस, राइट? शी इज taking time to think thoroughly, planning it, and then answering, and then replying it, right? So she is in adult state. So now next quiz. It's not my fault my drink got spilled on your new carpet. Samina ji. Child. Yeah. So बाकी लोग जो हैं वो भी रिप्लाई कर सकते हैं. समीना जी, धिंगड़ा जी, वसंत जी. So obviously कि आपके नए कारपेट पे जो है वो ड्रिंक गिर गया है, and the child don't want to take responsibility, right? So behaving like कि मेरा फॉल्ट नहीं है कि आपके नए कारपेट पे ड्रिंक गिर गया है. अब वो किसका फॉल्ट है डोंट नो, बट मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट? The next is, I wonder what might have caused that accident.
मतलब सोच रहा है कोई इंसान कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ हो सकता है, कि क्यों हुआ होगा। adult, एनीवन एल्स? adult, या सो वो कॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि क्यों हुआ होगा, तो सो दैट कि उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, राइट? कि नेक्स्ट टाइम से वी कैन टेक प्रिकॉशन। सो इट्स अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट इज फॉर गुडनेस से क्लीन अप दैट मेस। adult, नो, अब ये एक इंसिडेंट को लेते हैं कि ड्रिंक था कोई, वो नए कारपेट पे गिर गया। अब किसी ने बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, यहाँ एडल्ट आ गया। और फिर कोई बोल रहा है कि फॉर गुडनेस सेक, जो भी तुम अपनी कहानी बता रहे हो उसको साइड में रखो, ये मेस को क्लीन करो। So That's parent. this is like parent ego state, commanding, giving order, right? कि यहाँ पे पेरेंट ईगो स्टेट आपकी एक्टिवेट है, जो भी इंसान ये बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि ठीक है, सब चीजें साइड में रखो, अपना ये जो भी तुमने किया है ना, इसको क्लीन करो, राइट? सो इट्स गिविंग ऑर्डर। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है, शेल वी क्लीन अप द मेस टुगेदर विद अ वेट क्लॉथ? Adult. या सो नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन, और वो साथ में जो भी हैं वो और लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करने में, और कह रहे हैं कि क्या हम गीले कपड़े से साफ करें तो ये साफ हो जाएगा। एडल्ट अप्रोच है, राइट? एंड फिर जो एक इंसान है वो बोलता है, आई रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट। child, चाइल्ड, हाँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे दूर रखो, ये जो भी करना है अपने आप कर लो आप, राइट? तो आप देख रहे हैं कि कैसे डिफरेंट ईगो स्टेट्स जो हैं इस एक पर्टिकुलर इसमें आ रही हैं। वाओ, ग्रेट। So now, what's the time, by the way? Shabana ji, how much time we have? Another 10 minutes. Okay, great. So you guys finding it interesting? So though it's a very vast topic, but we will not cover much. But I'm just giving you this triangle कि कैसे डिफरेंट ईगो स्टेट्स जो होती हैं और डिफरेंट रोल जो आप प्ले कर रहे होते हो, तो ये ड्रामा ट्रायंगल में कैसे हम लोग उलझ जाते हैं, या हमारी ईगो स्टेट की वजह से हम कैसा रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो ईगो स्टेट सभी को क्लियर है कि पेरेंट ईगो स्टेट है, चाइल्ड है एंड एडल्ट है, राइट? अब कई बार क्या होता है कि लाइफ की पर्टिकुलर सिचुएशन में वी गो इन विक्टिम मोड, हमें पता भी नहीं होता है, बट हम वैसा रोल प्ले कर रहे होते हैं जैसे कि डाउन रोटन, मतलब कुछ होगा ही नहीं, बिल्कुल ही अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सॉरी, या सो ये जो है बहुत ही हेल्पलेस काइंड ऑफ विक्टिम का जो रोल प्ले है ना? आपकी कंप्लेंट्स होती हैं, जो आपकी नीड्स नहीं पूरी हुई, बीट योर इमोशनल नीड्स, योर फिजिकल नीड्स, योर नीड्स ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी, योर नीड्स ऑफ नर्चरेंस एंड केयर, मे बी योर नीड्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट, कि आपको जो है आपके पेरेंट्स से या जिनसे आप चाहते थे, बाकी पूरी दुनिया आपको एक्नॉलेज कर रही है, लेकिन आपके जो पेरेंट हैं, जो आप जिनसे सबसे ज्यादा आपको खुशी होगी कि आपके पेरेंट एक बार आपको, आपके फादर गले लगा लें, या आपकी मॉम जो है उन्होंने दिमाग में यदि बैठाया हुआ है कि आप तो ऐसे बच्चे हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ठीक से, यदि वो अप्रिशिएट करें तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। या आप अपनी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ किए जा रहे हो, बट वहां से आपको कोई
स्ट्रोक, पॉजिटिव स्ट्रोक नहीं मिल रहा है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो। तो इन दो लाइफ सिचुएशन जब आपकी एफर्ट्स जो है उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो कभी कभी हम इस विक्टिम मोड में चले जाते हैं। देन परसिक्यूटर इज एग्रेसिव, एंग्री, जजमेंटल, है ना। तो वो क्या है, वो समझते हैं आई एम राइट, है ना, और मेरे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। और इसमें क्या रहता है कि वो दूसरों की भी एक वैल्यू है, दूसरों की एक इंटेग्रिटी है, दूसरे इंसान का भी कुछ अपना है ना। वो बस चाहते हैं कि जैसा मैं सोचूं वैसा सब लोगों को होना चाहिए, जैसा है। जैसे कि होते हैं ना, कई हर घर में कोई ना कोई एक वेरी डोमिनेटिंग, बहुत क्रिटिकल, बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं, कोई ना कोई खानदान में ऐसे होते हैं। और एट टाइम्स वी आल्सो प्ले दिस काइंड ऑफ रोल कि हमें लगता है कि बस हम ही सही हैं, हमने जो कह दिया वैसे ही होना चाहिए सबको। And another role people play in different ego state, that is a rescuer role. Rescuer क्या होते हैं लोग? ओवर हेल्पफुल होते हैं। उनके क्या होता है कि खुद को सेक्रीफाइस करेंगे, खुद की नीड को सेक्रीफाइस करेंगे, वो दूसरे लोगों के लिए जिंदगी जीते रहते हैं। और इससे कोडिपेंडेंसी, मैंने एक टॉपिक लिया था, तो वो कोडिपेंडेंट ट्रेट्स भी आ जाते हैं उनमें, कि हमेशा ही उनको ये रहता है कि सामने वाला तो बहुत ही बच्चा है। जैसे यहाँ पे क्या है, नर्चरिंग पेरेंट का रोल प्ले हो रहा है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। उनको लगता है कि ये जो या कोई बीमार है घर में, या कोई इस तरह का है, या बच्चे हैं, या उनको वो एक मदरली केयर गिविंग नेचर से ही देख रहे हैं, और उनको लगता है कि मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। वो सामने वाले की एबिलिटी को डिस्काउंट कर रहे हैं कि वो ठीक से सोच सकते हैं, ठीक से काम कर सकते हैं। वो हमेशा ही ओवर नर्चरिंग, ओवर केयरिंग, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और उनका होता है कि उनकी जो नीड है वो है वहां पे, है ना। और उनका रोल ऐसा होता है कि वो हर कहीं पे भी ना रेस्क्यूअर का रोल प्ले करते हैं। सो इस ईगो स्टेट में जब आप टू मच नर्चरिंग होते हैं, टू मच केयरिंग होते हैं, टू मच इमोशनल होते हैं, तो एट टाइम्स वी प्ले द रोल ऑफ रेस्क्यूअर बिकॉज वी कांट सी अदर पीपल इन पेन। एंड हम हमेशा जो होते हैं दूसरे की कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को थोड़ा सा कम समझते हैं कि वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, और हम हर चीज में ये रोल प्ले कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा। हम, भगवान ने तो देखिए सबको वही बुद्धि, विवेक, दिमाग दिया है, और हर इंसान के पास वो है। और कई बार पेरेंट्स ना चाहते हुए भी, उन्हें मालूम नहीं होता है, कई बार पेरेंट्स बहुत बड़े बच्चों को भी, अब 40 साल का बच्चा है, 50 साल का बच्चा है, लेकिन वो अभी भी छोटा बच्चा है उनकी नजर में, और दे बिहेव लाइक अ वेरी नर्चरिंग पेरेंट। और इससे उन्हें ये नहीं पता होता, वो प्यार है, अफेक्शन है, विच इज फाइन, लेकिन आपने उस बच्चे को बड़ा ही नहीं होने दिया। आपने उसे वो एनवायरमेंट नहीं दिया कि वो खुद का डिसीजन ले सके, खुद के पैरों पे खड़ा हो सके, या खुद जो है स्टैंड ले सके, क्योंकि यू आर ऑलवेज 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 रेस्क्यूइंग योर चाइल्ड। सो ये हमें इग्नोरेंस में मालूम नहीं होता, बट हाउ दिस रेस्क्यूअल रोल इज डैमेजिंग यू, बिकॉज आपकी सारी एनर्जी आपके आसपास के लोगों पे, वो चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, आप वहां दे रहे हैं, और आप खुद का नहीं ख्याल रख पा रहे हैं। यू आर ओवर एग्जॉस्टेड, यू आर वेरी मच फिनेंशियली, इमोशनली, मेंटली आप पे आएगा इम्पैक्ट, यदि आप हमेशा ये रोल प्ले करते रहेंगे और खुद की वेलबींग पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसे ही परसिक्यूटर का रोल है कि उन्होंने तो एक ट्रिगर वो किया, या लोगों को बात ऐसी कम्युनिकेट उन्होंने ऐसे किया कि दूसरे लोग थ्रेट के मारे जो उन्होंने कह दिया वो ऑर्डर मान रहे हैं, और बाकी लोग सफोकेटेड है। सो एट टाइम्स पीपल गो इन दिस ड्रामा ट्रायंगल, एंड जो विक्टिम है वो विक्टिम का ही रोल प्ले करते रहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ ईगो स्टेट। एंड इफ वी कैन सी कि हम कहाँ पे पेरेंट का रोल ज्यादा प्ले कर रहे हैं, या क्रिटिकल पेरेंट का रोल ज्यादा प्ले कर रहे हैं, कहाँ पे हम ओवर नर्चरिंग, ओवर केयरिंग, और ऐसे करके हम सामने वाले की भी हैबिट बिगाड़ दे रहे हैं, राइट। क्योंकि हर किसी को ये होना चाहिए कि जैसे चिड़िया होती हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हैं, क्योंकि वो हर वक्त तो अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, वो सिखाते हैं कि आपको फ्लाई कैसे करना है। एंड व्हेन दे स्टार्ट फ्लाइंग, व्हेन दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर फूड एंड टेक केयर ऑफ देयर थिंग्स, तो वो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा होता है कि इंडियन पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स, मतलब कि यदि बच्चा 70 साल का भी होगा तो भी पेरेंट ही है, राइट। सो वी नीड टू, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें अफेक्शन है, दिल से प्यार है, लेकिन हमें दूसरे के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हमें थोड़ा सा रेस्क्यूअर वाला अपना जो वो है
टू मच नर्चरिंग को थोड़ा बैलेंस करना होगा। ऐसे ही यदि हम कहीं परसिक्यूटर का रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें पता नहीं होता है कई बार कि हमारा जो ये है कि मैं ही राइट हूँ, मैं ही सही हूँ, मैंने एग्रेसिव, एंग्री, जजमेंटल एटीट्यूड में जो भी है, एक तरीके से कमांडिंग हूँ, मैं बहुत अथॉरिटेटिव हूँ, बहुत एग्रेसिव हूँ। सो आई नीड टू बैलेंस इट आउट सो दैट कि दूसरों की पर्सनैलिटी भी ग्रो कर पाए, दूसरे भी अपने आइडियाज के पास आ पाए। तो ऐसे लोग कई बार लोनली भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के उससे डर से तो लोग काम कर देंगे लेकिन कनेक्ट नहीं करेंगे। आपके रिलेटिव्स भी आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, आपके दोस्त भी भागेंगे, भाई ठीक है काम कर दो, दूर ही रहो इस इंसान से। सो नॉर्मल कनेक्शन आप नहीं बना पाएंगे। थ्रेट के चलते लोग आपका काम तो कर देंगे बट यू विल नॉट फील हैप्पी, यू विल नॉट बी ओके इन दिस रोल एंड अदर पर्सन विल नॉट बी ओके इन दिस रोल। थर्ड इज लाइक विक्टिम रोल, है ना। तो विक्टिम हमेशा क्या करेगा, वो बिल्कुल चाइल्ड की तरह प्ले करेगा कि वो बहुत ही वीक है, अभी तो उसके बस का नहीं है कुछ, है ना। कोई उसको बस एक पेरेंट मिल जाए जो कि उसका ख्याल रख सके। तो इस तरह का रोल कि आई एम नॉट ओके, है ना, आई एम नॉट ओके एंड एवरीबडी शुड टेक केयर। इन ऑफिस मुझे कोई पेरेंट चाहिए जो कि मेरे को कंसीडर करे, मेरे इमोशनल को। वो ठीक है थोड़े टाइम हो सकता है आपका, लेकिन वो हमेशा यदि आप उस मोड से आएंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे लाइफ में। समवेयर यू नीड टू लीव दैट विक्टिम मोड। कुछ हो गया ठीक है, टेक योर टाइम एंड देन हील योरसेल्फ एंड मूव ऑन। So this is also a drama triangle which keeps playing due to the different ego states and role. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जिसमें कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। सो वी विल जस्ट कवर इट एंड कंप्लीट द सेशन। सो इसमें क्या है कि एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। Pooja, I have a question. या Hello. I Yeah, have yeah, a question. So where is the rescuer and the persecutor and victim? Where are they coming from? Which means why are they behaving like this? What happened in their childhood? Is this what it is? so it's a, yeah. It's a huge thing. I mean, not one single incident. आई मीन कि ये कोई चाइल्डहुड की बात नहीं है, ये लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो सकता है कि आपका So चाइल्ड। somebody who always is playing a rescuer and the other person is always a persecutor. ओके, गॉट इट। Yeah. सो So ये then what do you- आपको लाइफ को समझना होगा कि जो भी एज है आपकी, है ना, आपकी या सामने वाले की, तो Hello. I think Pooja's this thing network is bad. Shabana ji. Yeah. Yeah, So I think he got dropped off. Yeah. He might be joining. Hmm. so I was hello. So I was answering this question that you need to understand life of other person and how your life, like since childhood से लेके अभी तक क्या हुआ है आपकी लाइफ में, है ना, कि आपका कई बार वो हैबिट में आ जाता है। ऑब्वियसली इट कैन कम ड्यू टू चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट कैन बी लाइक आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है, या सामने वाले के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उसका चाइल्डहुड में एनवायरनमेंट कैसा हुआ, आपकी पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी में वो चीज कहाँ से आई, है ना। अब एक रेस्क्यूअर है और दूसरा परसिक्यूटर है, तो परसिक्यूटर को किसी ने कभी कॉन्ट्राडिक्ट किया ही नहीं, या रेस्क्यूअर को भी कोई कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला नहीं आया, उनको पता भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं, और कई बार पता भी है तो उनको वे आउट नहीं पता है कि कैसे इस रोल से डिफरेंट रोल भी प्ले किया जा सकता है, राइट। सो वो आपकी प्रैक्टिस हो गई है वैसी आइडेंटिटी की। अब रीजन कुछ भी रहे हो, रीजन डेफिनेटली देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजन, लाइफ सिचुएशंस, योर फैमिली सिचुएशन, आपकी परवरिश कैसे हुई, आपके पेरेंट्स कैसे थे, वहां से आपके सबकॉन्शियस में क्या कॉपी हुआ है, किस तरह की आपने जो चीजें हैं, आपकी जब आइडेंटिटी पर्सनालिटी शेप हो रही थी तो आपके अर्ली चाइल्डहुड, आपके जो थोड़ा सा अडल्ट टाइम था, आपका कॉलेज लाइफ था, उस टाइम पे क्या हुआ, फिर आप जब जॉब में थे
या आपकी हस्बैंड वाइफ में शुरू से कैसे डायनेमिक्स प्ले किए, या वो हो सकता है उन्होंने सोसाइटी से पिकअप कर लिया हो। सिर्फ पेरेंट्स से नहीं होता है, जैसे सोसाइटी में था कि पुराने जमाने में लोगों का होता था कि वाइफ को तो कंट्रोल में रखना चाहिए, ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो लोग सर पे चढ़ जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी, अब उनका थॉट प्रोसेस क्या है, किस ब्रेन से आ रहे हैं, अब वो फियर से आ रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि वो अपना कंट्रोल लूज कर देंगे, और अंदर से हो सकता है वो बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही वीक हो, जस्ट कि उनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई है तो वो वैसा कर रहे हैं, या फिर उनकी संगति ऐसी है, उनके सारे फ्रेंड सर्कल में जहां वो उठते बैठते हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा है, वहां पे ऐसे ही हैं लोग, सलाह देने वाले भी। सो आई मीन आपको थॉरली अंडरस्टैंड करना होगा, और if it's not serving you, and if it's not serving family, and if it's not serving other person, so you need to talk like adult, slowly, gradually, first of all need to understand, and then we can find, and थोड़ा practice दूसरे ways की भी करेंगे, दूसरा जो identity है उसकी भी करेंगे, और थोड़ा वो सामने वाले भी करेंगे, तो ये shift हो जाएगा। Hope I answered this question. Okay, sure. Yeah, it's a detailed thing, so I can't sum up in like 2-3 lines or something. But you hope get the gist of it. Ki, I mean, there is not one thing at play. It's our environment, our belief system, our experiences, how our subconscious is trained, habits. ये भी हैबिट में आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब एक्सरसाइज करने की हैबिट नहीं है किसी को, और एक्सरसाइज करना पड़ता है तो बहुत टफ है। अब किसी ने रेस्क्यूअर का भी रोल प्ले करना है, चाहे वो इग्नोरेंस में किया था, सिचुएशनली किया था, उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन अब वो स्टॉप नहीं कर पाएंगे, वो किसी को भी पेन में देखेंगे, किसी भी XYZ को प्रॉब्लम में, तो वो रेस्क्यू करने पहला उनका वही आएगा ऑटोमेटिक, because their memory, their cells, their body, their mind, their conditioning is trained in that manner. So rescuer also need to leave this, मतलब कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस आउट करना होगा। एंड जो सेकंड जिनको आदत हो चुकी है, क्योंकि अभी यदि हाँ, आई एम गिविंग वन एग्जांपल, जैसे क्या होता है कि वो जो दूसरा रोल प्ले कर रहे हैं परसिक्यूटर का, वो हर जगह नहीं करते होंगे, क्योंकि एंगर भी देखिए, यदि हम सिर्फ और सिर्फ एंगर और एग्रेशन की बात करें, जो एग्रेसिवनेस आप अपने बच्चों पे या अपनी वाइफ पे शो कर देते हैं, बिकॉज वहां पे वो लोग आप पे डिपेंडेंट है, या आप जो है अर्निंग हेड है फैमिली में, आप सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, वही आप अपने बॉस के सामने तो वैसा एंगर नहीं शो कर पाते हैं, बॉस की तो 4 बातें भी सुन लेते होंगे, है ना। तो सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी आइडेंटिटी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसी वाइब दे रहा है, उस हिसाब से भी दूसरे वाले का पता है कि ये नहीं चलेगी, मेरी दाल यहाँ पे नहीं गलेगी, तो वहां पे रोल प्ले करना होगा। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी के सामने जाइए और आप रोल प्ले कीजिए एग्रेसिव वाला, वो कितना भी एग्रेसिव इंसान हो नहीं कर पाएगा, राइट। सो द डिफरेंट रोल्स पीपल प्ले। अब मम्मी को आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन आप जाइए और किसी मिनिस्टर को जाके गुस्सा कर दीजिए ऐसे, तो जहां चलता है और वो चलना हमने अलाउ किया है, वैसा हैबिट हमने भी करने दिया और सामने वाले का भी ऐसा हो गया है। सो वी ऑल नीड टू शिफ्ट दैट। पैटर्न है वो, और कुछ नहीं है, वो पैटर्न के पीछे बहुत सारी कहानी हो सकती है, लेकिन अभी शिफ्ट किया जा सकता है इफ वी बिकम कॉन्शियस एंड अवेयर। Anyone else? So any other question? Kailashi, want to say something? Thank you very much.